Good morning. Now, today we are going to start with functions and usage of parts of speech. Right? In BBA English syllabus, you have three books: Animal Farm, Julius Caesar, and the third one is the grammar. So today we are going to start with the BBA English grammar. Right? The chapter one. Chapter one. What is it? Chapter one is functions and usage of parts of speech. Sorry, spelling galat ho. Now, functions and usage of parts of speech. Now, parts of speech, as the very name suggests, it is whatever we are speaking, right? We are speaking, we are giving a speech. मैं एकदम general term में तुम लोग को समझा रही हूँ. I'm not using the traditional English grammar version, which is very complicated to understand. Let's make it very simple so that we can use it in our practical or in our daily life. The very first thing in management, why we are studying English? English is just a way of communication, right? Because this is a common language which everyone understands it. So we have to study English. And grammar, जैसे हम हिंदी में भी ग्रामर पढ़ते हैं ना, किसको आप करना है, किसको ई करना है, किसको ऊ करना है, तो ये हमें समझना होता है. वैसे इंग्लिश में भी, इन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज व्हाट, was, how, where. तो डिफरेंट चीजें हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट है. In order to understand that we are using the sentence in a correct manner, we have to learn English grammar, right? That is why in management this is a separate subject. English grammar and communication skills are given. ठीक है ना? तो before we go ahead with the communication skill, first of all we have to know a little bit about introductory grammar. This is just an introductory grammar. We are not going to do an English PhD or English honors, right? So we just need that much of English knowledge so that we can communicate easily in an official environment or in a professional environment, right? So now with the starting of the parts of speech, the first thing we have to learn is nouns. We are learning it from the basic. हम लोग एकदम बचपन से nouns को पढ़ रहे हैं. Noun क्या है? What is a noun? A noun is a naming word. ये हमें सबको को पता है. Noun क्या है? Noun. A noun is a naming word. A name of what? Name of a person. It can be a person, is a thing, anything. Thing हो सकता है, an idea, quality of mind. The word thing is used to mean anything that one can think of. जब हम name की बात करें, the word यहाँ पर noun. Once we are using noun, what does noun mean? Noun का मतलब क्या हुआ? It means a naming word. Name of anything. Noun का basic मतलब हुआ name of anything. किसी भी चीज का नाम. Anything means यहाँ पे thing जब बात कर रहे हैं. Thing मतलब it can be anything. Name of a thing मैं लिख रही हूँ. If I'm writing name of a thing means आप कुछ भी चीज सोच लो. Thing, anything can come. India is a subcontinent. तो इसमें noun क्या है? India is a subcontinent. Noun क्या होगा? नॉर्मल सी बात है ना. इंडिया इज अ सबकॉन्टिनेंट. सो इंडिया के बारे में बात हो रही है तो इंडिया एकदम उसी को नाउन बोलेंगे. नेम. नाउन को हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? कैटेगराइजेशन या कैटेगरीज, अगर हम लोग बोले कैटेगरीज ऑफ नाउन्स बोल सकते हैं. कैटेगरीज ऑफ नाउन्स क्या है? फर्स्ट इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun, abstract noun, material noun. आई नो आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं इसको एकदम बेस, एकदम स्क्रैच से इसका रिवीजन कर रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग. आप हम लोगों ने, हर कोई ने इसको बचपन में पढ़ा है, बट आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच सो दैट आप लोग को बिल्कुल शुरू से याद आ जाए, राइट? सो कैटेगरीज ऑफ नाउन में हमारा कैटेगराइजेशन कैसे है नाउन्स का? फर्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किसे कहते हैं? अ कॉमन नाउन इज अ नेम
given in common to every person or a thing of the same class or kind. So common noun कब हम refer करेंगे? When we will refer as a common noun. Common noun is a name given in common. मतलब एक general category में जब आ जाती है ना, उसको हम लोग common noun बोलते हैं. तो common noun का मैं general किस तरीके से बोल सकती हूँ? जैसे मैं इसको generic एक general term दे रही हूँ. Same class और kind. तो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, मैन, वुमेन, कैट, टीचर, इस तरीके से ये सब मतलब दिस इज अ क्लास. डॉक्टर इज अ क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स, टीचर इज अ क्लास ऑफ प्रोफेशनल. सो ये क्या है? ये बिल्कुल एकदम सच नेम, दिस इज अ कॉमन नेम. ठीक है, सच नाउन्स आर यूजुअली नॉट कैपिटलाइज्ड. ये सब कैपिटल्स में हम लोग लिखते भी नहीं है, इसलिए बता रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉमन नाउन. इसके बाद हम लोग का जाता है सेकंड इज प्रॉपर नाउन. नाउ व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन. नाउ वंस वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा इज ऑलवेज कैपिटलाइज. लाइक मैं उस प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का, इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम लेकर यूज कर रही हूँ, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे ज्योति, ज्योति तुम्हारा ही नाम है, मेरा नाम नहीं है. इंडिया, ताजमहल, तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर है. प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक है. दिस इज स्पेसिफिक. ठीक है, इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन. एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिव नाउन भी कुछ तो आप लोग इंडिकेशन याद आ गया होगा. इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन. सो इट इज ऑलवेज रेफर इन कलेक्शन ऑफ थिंग्स और persons, right? तो एग्जाम्पल कैन बी, क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है कलेक्टिव नाउन का? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लाइक आर्मी, नेवी, क्लास, कैटल. एक्सक्यूज मी, हाँ मैं थोड़ा सा ये फोन डिस्कनेक्ट